of the world unless the condition of women is improved. With these inspiring words, I extend a very warm welcome to everyone present here today. I, as the convener of PTC Professional Training Cell HPNLU, it is my privilege to welcome you all to this eventful day. The Professional Training Cell, in collaboration with the National Commission for Women, proudly organized this workshop on Yashoda AI, a visionary initiative to empower women through artificial intelligence and cybersecurity. I'm deeply honored to welcome our esteemed guest, Shrimati Vijaya Rahatkar, the chairperson of NCW, Shrimati Vidya Negi, the chairperson of Himachal Pradesh State Commission for Women, our esteemed Vice Chancellor, Ma'am, Professor Dr. Preeti Saxena. I also acknowledge the presence of Mr. Ram Avtarji, Principal Private Secretary, NCW, Professor Dr. Brijesh Shukla, Registrar, HPNLU, and Dr. Deepika Gautam, Chairperson, Professional Training Cell. A heartfelt welcome to our respected guests, females of the non-teaching staff, and my inquisitive learners gathered here. The day reminds me of Simon de Beauvoir's words, one is not born, but rather becomes a woman. Uh, and this day aptly describes the quotation because Beauvoir's words resonate intelligence. The womanhood is not born but becomes through experience. I request all to welcome our distinguished guests with roaring claps. I request our esteemed guests to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. I express our heartfelt gratitude and respect. We now proceed to felicitate our honored guests. I request our Vice Chancellor, Ma'am, Professor Dr. Preeti Saxena, to kindly present token of appreciation to our distinguished guests. Students, please acknowledge the moment.
Morbi kindly escort the dignitaries to the dais. Moving forward with the proceedings, I have the pleasure of inviting Dr. Deepika Gautam, Chairperson of Professional Training Cell, HPNLU, to enlighten us about the mission and objective of the mission. Thank you, Dr. Ruchiraj Thakur. Good afternoon, everyone. As the chairperson of Professional Training Cell, I warmly welcome all the distinguished guests and all the participants present here. We are gathered here to reflect on the changing digital world and the important role that women can play in leading and shaping this transformation. Today's program has been organized under the Yashoda AI initiative, which is a national initiative of the National Commission for Women. This initiative focuses on increasing women's participation, awareness, and leadership in the age of artificial intelligence. As we all know, that artificial intelligence is influencing every part of life. It is transforming healthcare, education, employment, government, and everyday decision making. However, many women still remain on the margin, often without equal access to digital knowledge or confidence. So, to address this, the National Commission for Women has introduced Yashoda AI, and the Professional Training Cell of Himachal Pradesh National Law University is proud to collaborate in taking this initiative forward. The name Yashoda holds great significance. It represents compassion, strength, guidance, and leadership. This initiative seeks to inspire women to build confidence, literacy, encourage informed decision making in their day to day life. The goal is not to make every woman a technology expert, but to enable her to understand the digital world, use technology meaningful, and support others in doing the same. Before I conclude, I would like to express our heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Ma'am Professor P.T. Saxena. It is her guidance, support, and encouragement that gives us strength to stand here and to speak confidently. In many ways, she is Yashoda to all of us. So I must say, thank you, thank you. Thank you so much. That was so apt. There is no tool for development more effective than the empowerment of women. Every great endeavor begins with the words of wisdom. I now have the honor of inviting our Honorable Vice Chancellor, Ma'am, to deliver the welcome address. Dr. Ruchi. Very good morning to each one present in this hall. What, from where I have to start, I do not know. This is a Yashoda AI program, which was initiated in my alma mater. That is Mahatma Jyotiba Phule, Rohilkhand University on 23rd May 2025. I did my master from there and I taught there for 12 years now. And because this Yashoda AI, this is something which is to make a distinction that you want to be techno victim or techno friendly. Because we all know that in this era of advancement, technological advancement, everything is now on your tips. Right from the first industrial revolution to the fourth industrial revolution, we all see that what type of the advancements are there, developments are there, but at the same time, there is also something which discriminates, which distinguishes the fair sex, that is, we the women. Now, this is up to you, and this program, this initiative is nothing but just to make you informed that how to use these technological gadgets and how to make yourself not only safe from these things, cybersecurity and from the crimes, attacks, but also how to use those things because technology is for your benefit also. Don't take it otherwise that it is also going to benefit you or it is also going to give loss to you. It has to be used in a balance of these two things. And this is what I think this workshop, you are already here since 10 o'clock.
you must be listening to them. And without taking much time, because Madam has very less time, Madam, I welcome you from the HPNLU to our campus for this great initiative. Uh, Honorable Madam Vijaya Shankar Rahatkar, the chairperson of National Commission for Women. I welcome you, Madam. I welcome the state chairperson of Commission for Women, Madam Vidya Negi ji, in our campus. All the members and teams from the National Commission for Women who are here and from the State Women Commission. I welcome Ram Avtar ji, the Principal Private Secretary, NCW Delhi, and our own faculty members, Dr. Rajesh Shukla, Dr. Deepika, the chairperson of this team, and all the faculty members present here, the non-teaching female faculty who are also in very, very need of this very purposeful training, and all the dear students. Thank you very much. Thank you, ma'am. Digital literacy, safety, and inclusion are the need of the hour. Through the visionary initiative Yashoda AI, the National Commission for Women has taken a much needed and remarkable step forward, harnessing the power of artificial intelligence to strengthen, support, and empower women in today's digital era. To apprise us more about this initiative, we have with us Madam Vijaya Rahatkar, Chairperson of National Commission for Women, a dedicated champion of women's rights. I'm sure you all are very keen to know more about ma'am. Ma'am has dedicated over 30 years to Indian politics and social work, beginning her journey at the grassroots level as a municipal corporate. She passionately advocates for social and economic development and women-led development. She has assumed various electoral offices and leadership positions at social welfare organizations. Ma'am has done so much that I feel so overwhelmed. Ma'am has authored many books and ma'am has received awards like National Law Day Award 2017, Savitri Bai Phule Award. The year is not, ma'am, I'm so sorry about that. And I'm sure I should not be, you must be thinking that I am impeding the way. So I take a leave and ask ma'am to please share a few words. Thank you so much. आज के हमारे यशोदा एआई के कार्यक्रम के लिए इस मंच पर उपस्थित हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कृति सक्सेना जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विद्या नेगी जी, उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर शुक्ला जी, हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर दीपिका गौतम जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग से आए हुए राम अवतार सिंह जी, उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित फ्यूचरशिप लैब के आस्था जी, सुगन जी। आज यशोदा एआई ये कार्यक्रम क्या है, इसके लिए सभी को बहुत उत्सुकता है। इसको जानने के लिए यहाँ पर आई हुई हमारी स्टेट विमेन कमीशन की हमारी मेंबर, उन्हीं के साथ साथ हमारी आज यहाँ की शिमला की काउंसलर बहनें भी यहाँ पे आई है। स्टेट विमेन कमीशन की हमारी मेंबर सेक्रेटरी भी आई है, डब्ल्यूसीडी के भी कुछ लोग हैं, और उसी के साथ साथ आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे यूनिवर्सिटी के सभी प्राध्यापक, सभी छात्र
और सम्मानीय सभी उपस्थितिजन और मेरे प्रिय सभी हमारे विद्यार्थी और प्रतिभागियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ मेरा मिलना हुआ है। बहुत दिनों के बाद आज शिमला में आना हुआ है। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का जाना देश भर में हर जगह पे होता है, पर इतने में शिमला में आना नहीं हुआ था और एनएलयू भी आना तो पहली बार हो रहा है। तो मुझे आज खुशी है कि आज आपके साथ हमारा मिलना हुआ है। अभी अभी पिछले महीने में जब बेंगलोर का हमारा प्रवास हुआ था तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने बेंगलोर का जो नेशनल लॉ स्कूल है, बाकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, इन सभी के साथ यशोदा के प्रोग्राम हम करके आए हैं। और मुझे लगता है कि आज की हमारी ये चौथी पांचवी नेशनल लॉ स्कूल है जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हिमालय की इतनी सुंदर वादियों में जहाँ पे ये आपका यूनिवर्सिटी बसा हुआ है, इसको देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव भी मैं कर रही हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ फ्यूचरशिप लैब भी है और उसी के साथ साथ आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय HPNLU के प्रशासन भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम तीनों ने मिलकर आज जो प्रयास किया है, ये प्रयास आप सभी के जीवन में आपको बहुत अच्छी दिशा भी देगा। हम देखते हैं कि आजकल हम बात करते हैं विकसित भारत की, हम बात करते हैं 2047 की, कि जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हमारा भारत कैसे रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और आप सभी को तो ये जरूर पता होगा कि आज भारत विश्व के पटल का सबसे युवा देश है। हम जनसंख्या में तो नंबर 1 है ही, चाइना को हमने इस विषय में पीछे कर दिया, पर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरे विश्व के सबसे युवा देश के रूप में हम उभर कर आए हैं। और अभी हम जो युवा बनते जा रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम दिन ब दिन युवा होते जा रहे हैं और युवा होते होते 2036 में इसका पिक आएगा। और आप देखिए कि 2036 में पीक आएगा। आज का यहाँ पे मेरे सामने बैठे हुआ युवा जब इस देश के लिए अच्छा सोचेगा तो आगे के 50 साल इस देश के लिए आप काम कर सकते हैं और आगे के 25 साल तो केवल और केवल आप ही काम करने वाले हैं, जबकि आपके प्रयासों के साथ भारत एक बहुत अच्छा विकसित देश के रूप में हमारे सबके सामने आएगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत दृढ़ता के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत कैसे बने, तो एक ऐसा भारत बने जो आत्मनिर्भर है, जो डिजिटल रूप से सशक्त है, जो नवोन्मेषी है और जहां तक हर नागरिक, विशेष रूप से हमारा हर स्टूडेंट, हर महिला राष्ट्र के विकास की यात्रा में समान और सशक्त भागीदारी देते हैं। ये विजन लेकर हम चल रहे हैं और अगर इस विजन को साकार करना है तो हमारे देश का जो युवा है, इन युवाओं को सिखाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको सशक्त करना, ये हम सभी का काम बनता है। और इसी सोच के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI का कार्यक्रम हमने बनाया है। यशोदा AI का उद्देश्य है कि हम महिलाओं के सम्मान में जो जो नए तरीके हैं, उन सभी नए तरीकों को हम अपनाएंगे, पर महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को हम अनेक अनेक अवसर देंगे और उनको हम आगे लेके चलेंगे। तो आपको ये लगा होगा यहाँ पे जो लड़के बैठे हैं उनको, तो हमारा क्या काम है? तो मुझे आपको यही कहना है कि जब हमारी गाड़ी चलती है तो कोई एक पहिए के साथ नहीं चलती है, दोनों पहियों के साथ उसको चलना होता है। और बात
आज मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले तो आप में अपने घर पे अपने माँ का हमें सम्मान करना है, हमारे बहन का करना है, बेटी का करना है और उसके साथ-साथ आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में सीखने वाली आपकी जो साथी है, उनका भी सम्मान करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हमने यशोदा एआई किया है, जो आज के समय के साथ चलेगा। आपको ये लगा होगा कि क्या है यशोदा एआई? ये यशोदा नाम कहाँ से आया है? तो मुझे आपको वो कहना है कि यशोदा का अर्थ है योर एआई सखी फॉर शेपिंग होराइजन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस। यशोदा एआई है योर एआई सखी फॉर शेपिंग होराइजन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस। ये डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यशोदा एआई कार्यक्रम का उपयोग होता है। आप देखिए कि हम देखते हैं कि कितनी बार हम एआई का उपयोग करना जानते हैं। हमारे हाथ में है, इंटरनेट काफ़ी अच्छे तरीके से है, तो उसका उपयोग तो बस जब-जब समय मिलता है तब फ़ोन निकालना है और सर्च करना शुरू करना है। अब तो गूगल हमारे साथ है, अब तो क्या गूगल क्या, अब आगे चल के हम बहुत कुछ कहेंगे। हमारे साथ चैट जीपीटी आ गया है, ग्रोक आ गया है और भी अनेक-अनेक इस तरीके से चीज़ें हमारे हाथ में आई है, तो फिर फ़ोन तो शांत बैठता नहीं है, वो तो काम करता रहता है और हम उसके साथ खेलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पर जब हम इसी के साथ चलते हैं, तो आपको तो पता है कि जब-जब हम ये काम करते हैं, तब-तब हम क्या करते हैं? तो हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग करते हैं। आप देखिए ना यूट्यूब पे हम जाते हैं, यूट्यूब पे आपने कोई एक तरीके से गाने सुन लिए, अरिजीत सिंह के गाने सुन लिए। एक बार सुने, 2 बार सुने, तीसरी बार वही गाने आपके सामने आ जाते हैं। क्या है ये? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। जिस तरीके से वीडियोज़ आप देखते हैं, वही आपके सामने आते रहते हैं। हम हमारे जीवन में बहुत एक आसानी से उपयोग करते हैं। हम गूगल मैप का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमारी भाषा कैसी बदल गई। इसके पहले अगर हमें किसी के घर में जाना होता था तो हम मैडम हम ये कहते थे कि आपका एड्रेस भेज दो। अब हम क्या कहते हैं? लोकेशन भेजो। क्या है ये? एआई तो है। एआई का उपयोग है। ऐसे एन नंबर एग्जांपल्स एआई के मैं आपको दे सकती हूँ, जिसका हम उपयोग भी करते हैं। पर एआई का अगर सही मायने में उपयोग हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। देखिए सर्फिंग करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, हाथ में फ़ोन है और इंटरनेट है तो हम कर रहे हैं, ये बात अलग है। पर अगर एआई का उपयोग हम अपने करियर के लिए, अपने प्रोफ़ेशन के लिए हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान में लाना, इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए फिर हमने ये तय किया कि यशोदा एआई का ट्रेनिंग जो है, वो हम विश्वविद्यालयों में करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे। पर मुझे आपको ये भी कहना है कि यशोदा एआई केवल हमारे स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। तो यशोदा एआई उन सभी लोगों के लिए होता है, जो अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और एआई का उपयोग करते हुए, आगे बढ़ते हुए अच्छा काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यशोदा एआई का कार्यक्रम होता है। आज हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो आज आपके लिए एआई का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं प्रभावी रूप से, ये आपको बताया जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से उसका उपयोग आपके जीवन में करें। पर इसके पहले हमने अनेक प्रोग्राम्स जो किए हैं, वो हमने हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं। वहाँ के डॉक्टर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम किए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे तरीके से एआई के साथ कैसे चला सकते हैं। आपकी मेडिकल फील्ड में, ऑपरेशंस में, आपके अन्य जो हेल्थ सेवाएँ हैं, उसमें आप इसका अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे सब अभी बनने वाले एडवोकेट्स हैं। वो सभी एडवोकेट्स एआई का उपयोग आपके काम में, आपकी जो केसेस है उसको ढूँढने में और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं, आज हम ये भी बताएँगे। पर बात इतनी भी नहीं है। यशोदा एआई का ट्रेनिंग हमारे पुलिस का भी होता है। जो हमारे पुलिस जो सीपी है, एसपी है, एसीपी है और डीसीपी है, इन सभी के लिए यशोदा एआई का हम ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपने पुलिसिंग पुलिसिंग में, अपने काम-काज में
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हम महिलाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं, डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट है, हम उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो प्रभावी रूप से एआई का उपयोग अपने काम में करें। भारत तो सबके लिए बना हुआ है। भारत जैसे मेट्रोज में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, आप भी बड़े शहरों से आए होंगे। वैसे ही हमारा भारत छोटे गाँवों में भी बसता है। हमारा भारत छोटे-छोटे कस्बों में भी रहता है। हमने उन सभी महिलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए भी हमने ये छोटा एआई का ट्रेनिंग किया। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की जो आशा बहनें हैं, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से उनको डेटा कलेक्ट करना होता है। हमने उनका भी ट्रेनिंग किया और आज डेटा कलेक्शन करने में, उसका एनालिसिस करने में हमारी देश की आंगनबाड़ी सेविकाएँ, हमारी देश की आशा बहनें उसका एआई का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकती हैं। तो इसलिए ये एआई का कार्यक्रम होता है। मुझे आपको ये भी कहना है कि जब आपको एआई का अच्छा नॉलेज मिलता है, तो उसकी जो बुरी साइड जो कितनी बार सामने आती है हमारे सामने, कि कितनी बार सोशल मीडिया पे इसका बुरा उपयोग भी होता है, तकलीफ़ें भी होती है। अभी-अभी हमने देखा होगा कि हिमाचल में ही एक घटना कुछ दिन पहले आपके सामने आई है। कि छोटा लड़का है पर उपयोग होता है इंटरनेट का, सर्फिंग करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अनेक गलत चीज़ें भी सामने आ जाती है तो हावी हो जाती है। तो हम इसको हावी ना होने देते हुए हम इन सब बुरे चीज़ों से भी हम कैसे बच सकते हैं, ये आज की बहुत बड़ी बात है। आज हम देख रहे हैं कि युवाओं को इस तरीके से तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ मज़े में कभी बात हो जाती है, तो बात आगे बढ़ती है, तो बुरी चीज़ें सामने आ जाती है। हम ये भी देखते हैं कि अनेक-अनेक बेटियों के साथ उत्पीड़न ऑनलाइन होता है। अनेक बार सोशल मीडिया के ऊपर उनका उत्पीड़न होता है। कितनी बार ध्यान में भी नहीं आता है कि फ़ोटो किसी ने उठा के उसको कब मॉर्फ कर दिया है। कितनी बार गलत तरीके से वीडियोज़ वहाँ पे डाल दिए गए हैं। बात इतनी ही नहीं है, डीप फेक है, इस तरीके से अनेक-अनेक चीज़ों को हमें सामना कर पड़ता है। तो अगर आपका ये एआई का ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है होता है, तो उसके बाद इससे भी आपने कैसे बचना है, ये भी आप समझ पाते हैं और जीवन में एआई का पॉज़िटिव उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें इस कार्यक्रम करने की ज़रूरत महसूस हुई और मुझे आज कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि करीबन अभी तक मुझे लगता है कि हमने 35-40 यूनिवर्सिटीज़ में ये कार्यक्रम किया है। इसका बहुत पॉज़िटिव उपयोग हमारे पास आता है। हम एक बात ज़रूर करते हैं कि आज प्रोग्राम करके हम निकल गए, ऐसा नहीं करते हैं। हम आपके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होते हैं। हर महीने हमारी इग्नाइट नाम की एक लेक्चर सीरीज़ होती है, ऑनलाइन हम आपको हमारे साथ जोड़ लेते हैं ताकि इस विषय के साथ आप दूर न जाएँ। इस तरीके से हम अनेक प्रयास करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इन सभी प्रयास आपके लिए है। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएँ। एक हमारा और कार्यक्रम है, थोड़ा-सा इससे अलग है, कैंपस कॉलिंग। हम कैंपस कॉलिंग करते हैं। कैंपस कॉलिंग में वही साइबर सुरक्षा है और उसी के साथ-साथ हम पॉश का ट्रेनिंग करते हैं। आपको तो सबको पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कप्लेस का जो कानून है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की ज़रूरत होती है। तो उसी में हम हमारे कैंपेन स्टार भी हम चुनते हैं। ये एनसीडब्ल्यू के कैंपेन स्टार हैं, जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए हम जो अनेक-अनेक लॉज़ देश में बनाए हैं, इस लॉज़ के बारे में जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस निर्माण करने के लिए मदद करते हैं। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अभी-अभी कुछ दिन पहले एक कंसेंट ऐज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमने सेमिनार किया और इस सेमिनार में देश के सभी डॉक्टर्स आए थे, हमने डॉक्टर्स के साथ किया। देखिए लीगली तो हम काम करते ही हैं, बात करते हैं, पर केवल लीगल एस्पेक्ट नहीं हो सकता है, उसके अन्य एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। हमने डॉक्टर्स के लिए वो किया था, कंसेंट ऐज के लिए। तब हमने हमारे जो कैंपेन स्टार है उनको हमने उसके लिए बुलाया था और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे उन स्टार ने यूनिवर्सिटी से आए हुए जो बच्चे हमने सिलेक्ट किए थे, उन्होंने इतने अच्छे फीडबैक दिए हैं। अभी जब इसकी 12 तारीख से लगातार सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब हमारा जो रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट में हमारे उन स्टार ने जो कहा है, उनका जो कहना है, हमने वो भी वहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरीके से हम युवाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो मुझे ये भी आपको
ये भी कहना है कि आज हम देखते हैं कि आज भी देश में बहुत ज़्यादा हम डिजिटल अंतर भी महसूस करते हैं। तो इसीलिए इस डिजिटल अंतर को मिटाना ये हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे इसीलिए लगता है कि ये केवल एक प्रशिक्षण नहीं है, तो ये सभी को सशक्त बनाने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश है, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात, बैंगलोर और अब हिमाचल प्रदेश, इतने जगह पे ये कार्यक्रम हो चुके हैं। तो मुझे बस मैडम को भी एक आग्रह करना है कि शिमला जो आपका शिक्षा, प्रशासन और प्राकृतिक सौंदर्य का एक संगम है, यहाँ पर इस अभियान का आपका ये जो विश्वविद्यालय है, ये एक बहुत अच्छी तरीके से प्रेरणादायक केंद्र बनेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो और मैं ये भी कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश को हमारा एनएलयू इस विषय में नेतृत्व करेगा। जब-जब इस तरीके से हमारी कॉन्फ्रेंस होती रहेगी, वो कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आपको अनेक-अनेक अवसर भी मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी को बस आखिर में इतना आग्रह करूँगी कि आज आप यहाँ पे केवल एक ज्ञान लेके नहीं चलेंगे, तो एक नई ज़िम्मेदारी लेकर आप चलेंगे कि एआई का उपयोग हम किस तरीके से अपने जीवन में कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी को फिर से एक आग्रह करना है कि हम महिलाओं को भी बहुत सशक्त बनाएँगे, उनको सम्मान भी देंगे। जब एक महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो वो पूरा समाज बदल सकती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर ज्ञान, तकनीक और नेतृत्व की शक्ति को अपनाएं और एक सशक्त, समावेशी और समानता वाला भारत बनाएं। मुझे विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आपके नज़रिए में बहुत बदलाव आएगा। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना तो है ही, पर उसी के साथ-साथ एआई का उपयोग हम कितने ज़िम्मेदारी के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में भी वो नज़रिया आपका बदलेगा। आप सभी को मैं आपके भावी जीवन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। फिर से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का और एफएसएल का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत सरलता से आपने हमें बहुत कुछ बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। And truly we are going to achieve it. Empowered women are not just beneficiaries of change, they are the very architects of a better tomorrow. And after hearing ma'am, I think this goes so well with the time. We reach the end of this remarkable day filled with thought provoking discussions and inspiring ideas. We stand enriched with renewed vision, stronger resolve, and a deeper understanding of our collective mission to empower women in every sphere. To extend our heartfelt gratitude, I now have the privilege of inviting Professor Dr. Grijesh Shukla, Registrar HPNLU, to deliver the vote of thanks. I'm sure this is a vote of thanks only for this session, not for the day or not for the program. Thank you so much for Dr. Ruchiraj Thakurji for inviting me. It's my privilege to give this vote of thanks, especially to our chief guest for today, for this session, Madam Vijayaji, the Chairperson, National Commission for Women. And what I say, while I was listening to you, I realized that we started from Samman, reached to Sakshar, and now moving towards Saksham. So this idea of from Samman to Saksham is going to be really, celebrated with this Yashoda AI. Thank you, ma'am, for sharing your valuable inputs and information about this Yashoda AI to our students, to our staff members, and to all the participants here. I also have a special gratitude and thanks to Madam Vidya Negi ji, Chairperson, Himachal Pradesh State Commission for Women. Thank you, Madam, for gracing this occasion and sharing your valuable time with all of us. A special thanks to our own Vice Chancellor, Madam,
and what to say about her. We face all this issue and all this sort of guidance and sort of encouragement on day-to-day basis, and only in a true sense, as Dr. Deepika has already said, a true sense Yashoda for this university. Thank you, ma'am, for guiding us, for encouraging us, and giving us a leadership towards a real sense of empowerment, not for men or women, but for institution also. Thank you once again, ma'am. Special thanks to Ramadarji for coming here, giving us a sort of presence and guiding us towards this program, towards successful organization of this program. Thank you so much. Thanks to Dr. Deepika, the PTC members, Dr. Ruchi Raj Thakur, all our colleagues, the staff member, IT department, and my students for making this program really a big success. Thank you. Thank you. And it is time to rectify the mistake, because I know the association will go till eternity, as ma'am has already stated. So with this, we have. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is why I said I think we are going to take this association till eternity. मेरे बातों में एक बात मैं बोलना भूल गई। नेशनल विमेन कमीशन के लिए इंटर्नशिप का एक अच्छा अवसर आप सभी को मिल सकता है। कमीशन में इंटर्नशिप होती है और उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, और उसके अलावा भी आप हमें पूछते हुए, हमारे ऑफिस में बात करते हुए आप हमारे पास आ सकते हैं। अच्छे तरीके से ये इंटर्नशिप होती है। हम ये 2 महीने के लिए करते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो हम 1 महीने के लिए भी करते हैं, और 2 महीने की इंटर्नशिप करना ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए कि नेशनल विमेन कमीशन में लाखों कंप्लेंट्स आती है और इतनी वैरायटीज में वो आती है, इतनी कंप्लेंट्स, और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये अनुभव और कहीं मिलना बहुत कठिन है। और भी जगह पे इंटर्नशिप आपको मिल सकती है, वो भी अच्छी होती है, पर यहाँ पे केसेस की संख्या और फील्ड का जो काम है उसको सॉल्व करना जो है वो काफी अच्छे तरीके से आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसमें आपको ये अनुभव मिल सकता है कि जैसे हमारे यहाँ कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन तो सेल है, वहाँ पे आपको तो ये अनुभव मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारे अनेक सेल है। नेशनल विमेन कमीशन बहुत बड़े पैमाने में रिसर्च करता है। स्वास्थ्य ग्रुप में ये जो रिसर्च होते हैं, ये रिसर्च होते हैं लॉज के लिए, नए लॉ बनाने के लिए, पुराने लॉज में बदलाव करने के लिए, उसी के साथ साथ महिलाओं को लेकर आगे चलने के लिए जो सरकार की नीतियां होती है उस विषय में हम सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं। कितनी बार उसी के ऊपर सरकार अपनी नीतियां बनाता है, सरकार अनेक एडवाइजरी निकालता है और अनेक बार लॉ बदलते रहते हैं। आप सभी को ये जरूर पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस का जो पॉश का जो कानून है, इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो नेशनल वुमेन कमीशन ने बनाया है, और उसके बाद फिर वो आगे चला गया है। अभी हमने काफी अच्छा, हम हर साल 2 लॉ रिव्यूज करते हैं। हमने इस साल जो प्रिजन लॉ है उसका एक रिव्यू हमने किया है, और इसके साथ साथ जो रिव्यू हुआ है वो प्रिजन लॉ के साथ साइबर लॉ, आईटी एक्ट का भी हमने रिव्यू किया है। और मुझे आपको कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इसके लिए 12 कंसल्टेशन किए देश के हर कोने पे, और उसके बाद हमने कंसल्टेशन किया दिल्ली में विज्ञान भवन में, देश के कानून मंत्री उसके लिए आए थे, और हमने अभी जो बदलाव, हमने जो सुझाव दिए हैं 12 लॉस में हमने बदलाव दिए हैं, केवल अकेले आईटी एक्ट में नहीं, आईटी एक्ट काफी नहीं है, तो हमने 12 लॉस में वो सुझाव दिए हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही सरकार को हमने वो दिया है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा रिसर्च नेशनल विमेन कमीशन करता है। इसके अलावा अगर कोई रिसर्च आपके अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हिमाचल में आप काम कर रहे हैं, यहाँ के महिलाओं से संबंधित कोई रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी तरफ आप जरूर आ सकते हैं। तो ऐसे आपके लिए स्टूडेंट्स को भी आपको 1 या 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करने के लिए मिलती है। अगर किसी को और ज्यादा रुचि है, जो थोड़े और सीनियर है, जिनका अभी कोर्स पूरा होने को आया है, उनको नेशनली हमारे साथ काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम हमारे यंग ऑफिसर्स भी हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी काफी अच्छी संख्या हमारे यहाँ मिलती है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है।
wonderful. I think students, this is the best reward we can get. This is the best takeaway from the whole session. Lovely. I think lot many opportunities are coming our way. So with this, I would like to end the insightful and inspiring session. Remarkable it was, and I think मैम को सुनने का बहुत मन है, but मैम के पास इतना समय नहीं है. So we'll definitely would like to invite ma'am once again to share a lot with us. I think, I mean, today's session was just